Very good morning in Jai Hind class 12th. Once again, I welcome you to the online classes. Continuing with chapter number 6, Staffing. Today's topic is Concepts of Training and Development. Dear students, we are almost, discussed the selection and recruitment process. I hope you are not facing any kind of problem in the recruitment as well as selection process. I hope placement is clear to all of you, orientation is clear to all of you, right? Recruitment में क्या होता है? What we generally used to do with the recruitment? If we are talking about recruitment, then recruitment is a process in which we generally fill the vacant position. ठीक है, for that we invite number of application and we do the screening of those application. Selection में we take test, psychological test, trade test, right? Then this is the another topic, and that is induction. That is induction. What is there in induction? To get familiarize the candidate with the another employee, with the superiors. Then what is placement? Next is placement. उसको बताना employee को that you are suitable for this particular job, and if the employee is not fits the best in a particular job, for a particular job, so उसको ट्राई किया जाएगा. ही इज़ ट्राइड ऑन different kind of job, and if his performance is satisfactory, he will be offered a permanent post and placed on that job, right? So ये सब हमने पढ़ा है बेटा, ये सारे topics we have already covered. Today we are going to start the most important another topic, and that is concepts of training and development. Now the concepts of training and development is, the very first one is training. Okay, so what is there in training? Training is the act of increasing the knowledge. It is according to Edwin B. Flippo, right? Training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. It means once a person has assigned a particular task, once you offer a job to a particular candidate, ठीक है, individual, so it is the responsibility of the superior to make him trained, to get him trained. So training increase the knowledge, whatsoever knowledge the individual is having. If we are providing training to that individual, it increase its knowledge, its skills for doing a particular job, right? ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है. इससे टेक्निकल स्किल्स एम्प्लॉयज़ की इम्प्रूव होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं. इट इनेबल टू देम टू डू अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली. किसी काम को बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाता है, ये ट्रेनिंग देकर उन्हें समझाया जाता है. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है वर्कर्स को a gain of technical knowledge. There are number of machines, number of sophisticated machines a candidate has to deal with, so it gives you a technical knowledge and to learn new skills for doing a particular job, specific job. ट्रेनिंग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, न्यू एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. सी, आपकी कंपनी में कोई नई सोफिस्टिकेटेड मशीन आई है, सो उसके लिए भी आपको ट्रेंड किया जाएगा. किसे? दोज हु आर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ साथ उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो दैट दे विल बी इन टच विद द न्यू टेक्नोलॉजी. It enables the new employees to get acquainted, familiarized with their jobs, and it also increase the job related knowledge and skill. See, अगर हम किसी नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, हमें पता है हमने उसे किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अपॉइंट किया है, वी आर वेरी मच नोन दैट वो कितना केपेबल है, कितने उसके पास स्किल्स हैं. इवन देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जिस काम पर आपके पास आया है उसी काम का एक्सपीरियंस उसे हो सकता है, बट फॉर डिफरेंट टास्क. अब वो जो काम आप उससे कराना चाहते हो, जिसके थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, फॉर दैट यू नीड टू हेल्प हिम आउट, फॉर दैट यू नीड टू ट्रेन द पर्टिकुलर एम्प्लॉय, so that
it will increase his technical skills, right? And he will do the particular job efficiently. Now, what is development? Development involves growth of an employee in all respects. हर तरीके से एक एम्प्लॉय का ग्रोथ. It denotes the process by which employee acquires skill and competence to do their present job and increase their capabilities for handling higher jobs in the future. अच्छा बेटा, अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग, आप ट्रेन करके किसी को उसकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उसको इनेबल कर रहे हो ताकि वो काम अच्छा कर सके. एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में किसी एम्प्लॉय का पूरी तरीके से डेवलप हो जाना, ग्रोथ हो जानी. एम्प्लॉय स्किल्स एक्वायर करता है और वो इतना केपेबल हो जाता है कि वो प्रेजेंट जॉब को बहुत अच्छे से करता है, जिससे उसकी कैपेबिलिटीज़ और हायर होती हैं और उसके प्रमोशन के चांसेस फ्यूचर में बढ़ जाते हैं. इसे कहते हैं डेवलपमेंट. ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है कॉम्पिटेंसीज़, कैपेबिलिटीज़ को बिल्डअप करने का. सो ये ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करता है. एंड दिस टर्म इज़ जनरली यूज्ड इन रिलेशन टू मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं और मैनेजर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की पोस्ट पे. एंड इज़ डिस्क्राइब्ड एट मैनेजमेंट डेवलपमेंट और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोसेस. सी दोज हु आर दी labor, they will be the labor. One is the supervisor. The supervisor might get chance to become the regional manager. ठीक है, तो एक लेवल पे, मैनेजरल लेवल पर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है स्ट्रगल, वर्क हार्ड किया जाता है सो दैट स्किल्स और कॉम्पिटेंस बढ़े एम्प्लॉय का. ओके, और इससे उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो, जिससे इन फ्यूचर इफ़ देयर विल बी एनी वैकेंसी तो उसको वहाँ पर फिक्स कर दिया जाए. नाउ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन थ्री? मतलब लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थ्री फर्स्ट. ट्रेनिंग हमने पढ़ा, देना क्या? व्हाट? टेक्निकल नॉलेज. किसी काम को करने के लिए, किसी काम को कितनी खूबसूरती के साथ किया जा सकता है, कितने वेल मैनर्ड वे के साथ किया जा सकता है, उसकी टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग. बट डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर प्रोसेस, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट देखता है. जब ओवरऑल डेवलपमेंट किसी का होता है तभी द पर्सन विल बी प्रमोटेड फ्रॉम अ जॉब टू पर्टिकुलर जॉब और फ्रॉम अ पोजिशन टू पर्टिकुलर पोजिशन, यू कैन से. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड प्रोसेस. ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह डेवलपमेंट तभी होगा जब ट्रेंड किया जाएगा किसी को अच्छे से. ट्रेनिंग के थ्रू हम न्यू स्किल्स लर्न करते हैं, सीखते हैं. डेवलपमेंट शेप एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के एटीट्यूड को शेप देता है, राइट? सो द टर्म ट्रेनिंग इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़. ऑपरेटिव कौन हो गए? लेबर. उनको ट्रेंड किया जा रहा है. वेयर एज डेवलपमेंट इज़ यूज्ड इन एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर. ठीक है, उन लोगों का डेवलपमेंट होता है सो दैट दे विल बी प्रमोटेड टू फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. अब एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा पार्ट है. एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज. इफ़ यू आर एजुकेटेड यू हैव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स. यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स. एक लॉजिकल और रेशनल माइंड हो जाता है एक एम्प्लॉय का किसी सर्टेन फिनोमिना को देखने का. इसका स्कोप बहुत वाइडर है देन ट्रेनिंग. If you are not educated, there is no use of training sometimes, which is concerned with increasing knowledge and skills. वही अपनी knowledge को increase कर सकता है जो educated होगा. Only the person can increase their skills, the one who is educated for doing a particular job. But purpose क्या रहता है? Development होना चाहिए. That means overall facts of life of an individual पर focus होना चाहिए. So increasing knowledge, जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टोटल एनवायरनमेंट, राइट? सो एजुकेशन से हम फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं जो हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं. ट्रेनिंग वोकेशनल ओरिएंटेड हो गया, किसी को वर्क प्लेस पर किस तरह से काम करना चाहिए वो दिखाता है. ट्रेनिंग यूजुअली हैज़ मोर इमीडिएट यूटिलिटेरियन पर्पस दैन एजुकेशन. एजुकेटेड है बट ट्रेन नहीं है तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है. पता ही नहीं है इंसान को कि उसे करना क्या है. द इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू फाइंड आउट what he or she is expecting. In practice, the difference between training and education is not precise and both occur at same time. दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन.
एजुकेशन है, आप अच्छे से और ट्रेंड हो सकते हो। आप ट्रेंड होगे, आप एजुकेट होगे, आपको कुछ चीज़ नई स्किल्स डेवलप होंगी आपके अंदर, राइट। सो हियर आर सम बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द वर्कर्स। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। लेट्स रीड इट वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट वन पॉइंट इज सिस्टमेटिक लर्निंग। See, once you are giving training to the individuals, so that means once you are providing systematic training program, so उससे आपका टाइम बचता है। कोई न्यू एम्प्लॉई आपके कंपनी में ज्वाइन किया है, किसी न्यू एम्प्लॉई ने, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से काम शुरू करना है, कैसे काम शुरू करना है, बट वेरी फर्स्ट डे इफ़ यू प्रोवाइड हिम ट्रेनिंग, सो द इंडिविजुअल वुड बी परफेक्ट इन डूइंग द जॉब। Employees need not to learn, underline this, by trial and error or by observing others. ऐसा नहीं है कि खड़े होकर देखें पहले, अरे ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, अच्छा ऐसे काम करना है, तो उसमें गलती के चांसेस रहते हैं। बट फर्स्ट डे आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा, कम आपको यहाँ से काम शुरू करना है, यहाँ पर ख़त्म करना है, इस तरह से काम करना है, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। सो सिस्टमेटिक लर्निंग हो जाती है, ओके। उसका ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ये होता है कि कोई मिस्टेक नहीं होती है, सिस्टमेटिक वे में काम होता है। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, अ वेल ट्रेंड एम्प्लॉय यूजुअली शोज़ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, और जो ट्रेंड नहीं है वो कैसे प्रोडक्टिविटी शो करेगा। हायर क्वालिटी ऑफ वर्क आउटपुट वो आपको देता है इफ़ वी कंपेयर देम फ्रॉम अनट्रेंड एम्प्लॉय। अनट्रेंड एम्प्लॉय को 10 दिन यही देखने में लग जाएंगे, मुझे काम शुरू कैसे करना है, मुझे मेरा क्या गोल है, व्हाट इज़ माई ऑब्जेक्टिव। सो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी सिर्फ ट्रेंड एम्प्लॉय आपको दे सकता है। कहते हैं ना, जितना पुराना काम करते हैं हमारे साथ जितने लोग, वो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी देते हैं, उनको वो ट्रेंड होते हैं। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, ट्रेंड पर्सन जो होते हैं दे विल बी एबल टू मेक बेटर और इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। उन्हें पता है कि कहाँ पर अगर शॉर्टेज है तो वो उसको वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेंगे, अगर एक्सेस है तो उसको भी यूज़ करना उन्हें पता है, वेस्टेज भी इससे रिड्यूस होती है, वो ट्रेंड हो जाते हैं ना। हायर मोरल, द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज इंक्रीज्ड बिकॉज इफ़ दे आर बीइंग गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो वो मोल्ड कर देता है एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को। उन्हें पता होता है व्हाट द कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, और वो पूरा कोऑपरेट करते हैं, लॉयल्टी के साथ काम करते हैं। हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डिससेटिस्फैक्शन, कंप्लेंट, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर कैन बी रिड्यूस्ड। आप पूरे ट्रेंड हो, आप कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं हो सकते काम से, आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी, आपको पता है आप ट्रेंड हो इस चीज़ में। एब्सेंटिज्म, आप छुट्टियां नहीं लोगे, लीव्स नहीं लोगे, इट्स बिकॉज आपको पता है आपका वर्क आपको करना है। एंड टर्नओवर, आप कंपनी के लिए हर वो काम करोगे जिससे उसे बेनिफिट हो, बिकॉज यू आर ट्रेंड, यू कैन कॉप अप विद द डिफरेंट सिचुएशन इजीली। इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग प्रिपेयर करते हैं लोगों को चेंज से इंटरेक्ट करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो। आज कोविड-19 है, हमें टेक्नोलॉजिकल चेंज करना पड़ा। वी आर स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स, टैब्स, computers, laptops instead of direct interaction in class, because teachers are ready, you are ready, that is why the training, एक दो दिन तो टीचर्स को भी लगा, एक दो दिन आपको भी लगा, प्रॉब्लम हुई, बट वंस वी बोथ गेट ट्रेंड तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली नाउ, ओके। क्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ स्किल्स, ट्रेनिंग कैन बी यूज्ड इन स्पॉटिंग आउट प्रॉमिसिंग मैन एंड इन रिमूविंग डिफेक्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। आप ट्रेंड कर रहे हो, ट्रेंड करने के दौरान आपको ये पता चल जाएगा कौन हु इज़ द प्रॉमिसिंग मैन और किसको कौन डिफेक्ट हो सकता है, क्रिएट कर सकता है वर्क में। सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पर आप एक कहते हैं ना, सिलेक्शन में आप एक लाइव सिचुएशन देते हो कि ऐसी सिचुएशन होगी तो आप इसमें क्या करोगे, तो आप उसको रिमूव कर देते हो जो कैपेबल नहीं होता है, आंसरेबल नहीं होता है। सो इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट एंड ट्रेन एम्प्लॉय फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटर होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से किसी को लो और उसको ट्रेन करो, रादर देन सीक दी स्किल्ड एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। बाहर से किसी को बुलाओ और फिर उसको ट्रेन करो। जो पहले से काम कर रहा है, आपको लगता है उसको बढ़ाना चाहिए, तो उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द एम्प्लॉयज़। नाउ कम्स द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू द वर्कर। वर्कर्स को क्या फ़ायदा मिलता है? एक्विजिशन ऑफ कैरियर ओरिएंटेड स्किल।
वंस यू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज जो आपको इम्प्रूव करेंगे आपके करियर में भी. वंस यू गेट ट्रेंड तो आपको उसका फ़ायदा, ट्रेंड हो गए, आपके पास स्किल्स आ गई, आपके पास नॉलेज आ गई, उसका फ़ायदा आपको आगे हर जगह होगा. हायर वेजेस, यू आर ट्रेंड तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी, आप काम अच्छा करके दोगे, इससे आपकी वेजेस भी बढ़ेंगे, आपको बोनस भी मिलेगा. राइट. इंडस्ट्रियल सेफ्टी, trained workers are less prone to accidents as they handle the machines carefully. इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसे रहती है, आपने ट्रेंड कर दिया किसी मशीन्स पर काम कैसे करना है तो एक्सीडेंट नहीं होगा. उन्हें पता है कि कैसे सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ करनी है इन केस ऑफ एमरजेंसी ऑल्सो. राइट. देन कम्स प्रिपरेशन फॉर प्रमोशन. एफिशिएंट वर्कर शार्पन देयर स्किल्स. काम करते करते ट्रेनिंग के दौरान वो इतने स्किल्स को शार्पन कर लेते हैं जिससे उनका प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल. हायर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल. ट्रेंड एम्प्लॉय को अपने काम को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके काम में कभी कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, मिस हैपनिंग नहीं होती है, इससे जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है और उनका मॉरल हमेशा हाई रहता है. इट्स बिकॉज दे आर ट्रेंड. अनट्रेंड तो पहले दूसरे दिन यही सोचता रहेगा कि काम शुरू कहाँ से करना है. सो ट्रेनिंग के बेनिफिट्स रहते हैं टू दी ऑर्गेनाइजेशन एंड टू दी वर्कर्स, दोनों को. ओके. सो बेटा नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको. ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए. डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय हर तरीके से, सो दैट वो एक जॉब से एक लेवल से दूसरे लेवल पर प्रमोट किया जा सके. डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड स्किल, यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड होता है. ट्रेनिंग रिवॉल्व अराउंड द जॉब ओनली. जो जॉब है उससे रिलेटेड आपको स्किल्स प्रोवाइड किया जाएंगे. बट डेवलपमेंट में ऑल राउंड नॉलेज ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट जॉब्स. ये एटीट्यूड को शेप देता है, इम्पार्ट करता है टेक्निकल, ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय. ट्रेनिंग का पर्पस होता है मेंटेन करना और इम्प्रूव करना करंट जॉब परफॉर्मेंस, ताकि आप काम करें, अच्छे से काम करें. डेवलपमेंट में एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सीक टू डेवलप कॉम्पिटेंस एंड स्किल फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस. डेवलप किया जाता है किसी को फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस और ट्रेंड किया जाता है ताकि वो अब वाला काम जो दिया गया है उस काम को अच्छे से करें. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ लर्निंग एंड लेवल ऑफ ट्रेनीज. Term training is used in the sense of imparting specific skills among operative worker employee. ये तो ऑपरेटिव वर्कर को दी जाती हैं जो लाइन पर काम करते हैं, जो सुपरवाइजर्स के अंडर होते हैं, जो लेबर होती है. बट डेवलपमेंट होता है एग्जीक्यूटिव्स का, मैनेजर्स का. इसमें डेप्थ ऑफ नॉलेज गेन्ड इज़ वेरी वाइड. कितनी भी नॉलेज ले लो उतना ही कम है एंड यू विल बी प्रमोटेड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. ओरिएंटेशन और फोकस. ट्रेनिंग हमेशा जॉब सेंटर्ड होती है और डेवलपमेंट कैरियर सेंटर्ड होता है. ट्रेनिंग आप जो काम कर रहे हो उसमें प्रोफिशिएंसी लाती है. डेवलपमेंट में ये आपको प्रिपेयर करता है फॉर हैंडलिंग हायर लेवल ऑफ जॉब्स. राइट. मेथड. ट्रेनिंग में हम ऑन द जॉब मेथड लेते हैं, जैसे कोचिंग, जॉब रोटेशन, वेस्टिबल ट्रेनिंग. या आप आगे पढ़ोगे इसे. होता क्या है ट्रेनिंग में बेटा, आपको मशीन पे खड़ा कर दिया जाता है और बोलते हैं कि देखो काम ऐसे होता है. ठीक है, इसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. मतलब काम करते हुए आपको सिखाया जा रहा है कि काम कैसे होता है और आपको कैसे हैंडल करना है. बट डेवलपमेंट ऑफ द जॉब मेथड से होता है, आपको बाहर भेजा जाता है लेक्चर्स अटेंड करने के लिए, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वेबिनार्स. ठीक है, तो ऑफ द जॉब मेथड्स होता है डेवलपमेंट. आप बाहर जाते हो, दो बातें सीख कर आते हो, उससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. बॉस इज टेकिंग इनिशिएटिव ताकि वो आपको ट्रेंड कर सके सबऑर्डिनेट्स को. इसमें ट्रेनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये डेवलपमेंट में इंडिविजुअल खुद से इनिशिएटिव लेता है क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो ही हैज़ टू बी इंटरनली मोटिवेटेड फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. उसको खुद से अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाना है, अपनी स्किल्स बढ़ाने, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है. ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत शॉर्ट टर्म का होता है, 1 डे, 1 मंथ. राइट. डेवलपमेंट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यू. आप आज भी सीख रहे हो, आप कल भी सीखोगे, जितना सीखोगे उतना डेवलप करोगे. राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डन विद ऑलमोस्ट these topics
From tomorrow we are going to start the most important topic, that is methods of training. Methods of training, right? And by the time you all are supposed to recall the difference between, just go through the difference between the training and development at home, right? Have a good learning. Thank you.